of IP address. Okay, and why your IP address is divided in four classes, which IP address are reserved, okay, that you can't use or you can't allocate to any device. And next topic after IP is a physical address. Okay, so you need to do mapping. Okay, mapping is required, so that we are going to study. So which protocol is used for mapping, and how to do mapping. So there are two ways to do mapping: dynamic binding and direct mapping. So that we will going to see. Okay, ma'am. Okay, just a second. So dotted decimal representation. Okay, as you know, key IP address are written as a four decimal integers. Okay, so as you can see over here, 128.20 10.2.30. So what is a decimal representation? It's written over here. So it is a dotted decimal representation of your IP address, right? And it is separate by the dot value. And when you convert into the binary, so in each, you can see in each this you are having 8 bit, means 8 octet. Sorry, 1 octet. So there is a 4 octet in IP address. So total 32 bit. So in a first octet there is a 8 bit, second octet you have a 8 bit, third you have 8 bit, and fourth you have a 8 bit. So total 32 bit. Dotted decimal representation is looking like that, but you need to convert into the binary, so in ones and zeros. So after conversion you can see your IP address as a 32-bit internet address, right? TCP IP software that display or require human to enter the IP uses a dotted decimal notation. Okay, how we can enter the IP address? We can't remember this value. We can't remember the binary version of IP address. We can only remember this 128.10.2.30. Okay, when we are going to enter somewhere, so we put this representation anywhere, right? Your not netstate command gives you whole list contain all the IP, okay, whatever the values IPv4, IPv6. So this is a one command contain all the IP addresses of your system. Okay, either you are using Ethernet, Wi-Fi, VMware. So it lists out all the IP addresses, port number. Okay, which port numbers are open. So this is one command. So we are right now we are studying classful addressing. Classful matlab we are dividing our IP addresses in different classes A, B, C, D, E. We have a 5 classes in classful addressing. So classful addressing is used. It is helpful to understand the relationship between the IP address, classes, and dotted decimal numbers. Now we are going to look in each and every class up to what is a starting address and what is a end address. Okay, so we have a limit in each and every class. We are going to see in class A. So lowest address is 1.0.0.0 and highest is 126.0.0.0, right? So 1 to 126, this much address you can allocate if you are having class A as your addressing scheme. Okay, if you are in a class B, so it starts from 1 to 8 up to 1 to 9.255.0.0. Here you can see we are not starting from 1 to 7. We are skipping that address. We'll see why because that address is a reserved address. Why we need to skip 1 to 7? So we'll see later कि this is a special address that we can't use. So in B class, you have to start with 1 to 8 point 1.0.0 up to 1 to 191.255.0.0. In C class, we start the addressing from 192.0.1.0 up to 223.255.255.0. Okay, in D and E, you can see a different version 224 to 239, here 240 to 225. Okay, so these are the range
you can see in a class A, class B, class C, class D and class E. Okay, so if you are using any of the scheme, so starting address, lowest address will be this, and highest number of address you can allocate to any device is this. That you Okay, need to ma'am. remember. It is, yes, it is given by IANA. जिन्होंने ये TCP/IP बनाया है उन लोगों ने ये एड्रेसिंग स्कीम डिसाइड की है, और ARPANET। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ए के अंदर इतने आईपी एड्रेस होते हैं, बी के अंदर ये स्टार्टिंग एड्रेस, और इसके बीच में जितने आईपी एड्रेस हो गए, सपोज कि मान लो 128.2.0, ओके, 129, ओके, वहां तब तब से लेके 191 तक, ओके, ये सारे एड्रेस आप अलोकेट कर सकते हो। ओके, तो ये रेंज है, ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट है, इसके बीच के सारे आईपी एड्रेस आप अलोकेट कर सकते हो। गॉट इट? अभी हमने 1 to 7 को अलोकेट नहीं किया था, राइट? तो ये क्लासेस में सारे आईपी एड्रेस आप असाइन नहीं कर सकते, सम एड्रेसेस आर रिजर्व्ड एड्रेस, जैसे कि 127.0.0, दिस वैल्यू यू कांट असाइन टू एनीवन। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ लूप बैक एड्रेस। इसको क्या बोलते हैं? लूप बैक एड्रेस, और आपका लोकल होस्ट आईपी। ओके, यहाँ से जो सारे पैकेट आते हैं वो नेटवर्क के अंदर नहीं जाते। क्यों? अगर प्रीफिक्स ये होगा किसी भी पैकेट का, जिसमें सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी स्पेसिफाई है, और इफ यू सी दिस एज अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो आगे लिखा होता है वो एज अ 1 to 7, तो ये इसको बोलते हैं लूप बैक आईपी। तो इसको लूप बैक आईपी का मतलब कि ये लोकल होस्ट कम्युनिकेशन के लिए ही बना है। ओके, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ऑन लोकल कंप्यूटर। नेटवर्क के अंदर ग्लोबली इस पैकेट को नहीं डाला जाएगा। समझ रहे हो? तो दिस इज अ फिक्स एड्रेस जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो किसी और पर्पस के लिए। अगर कोई भी पैकेट का सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी ये होगा, मतलब ये बना है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, लोकल आईपी कम्युनिकेशन के लिए, और यू कांट यूज, और आपका डिवाइस भी उसको ग्लोबल नेटवर्क के अंदर उसको नहीं डालेगा, उस पैकेट को, फॉर द राउटिंग पर्पस। ओके, तो ये इनर राउटिंग के लिए ही बना है। तो ये समरी है पूरी इंटरनेट एड्रेसिंग की। एज यू कैन सी, हर एक प्रीफिक्स का कुछ मतलब होता है, और ईच एंड एवरी प्रीफिक्स मस्ट बी यूनिक। टीसीपी आईपी के अंदर हर एक डिवाइस का आईपी यूनिक होता है, मतलब उसके प्रीफिक्स यूनिक होने चाहिए। सो आइदर यू आर, इफ यू आर इन अ प्राइवेट इंटरनेट, तो आपके लिए कुछ रिजर्व्ड प्रीफिक्स हैं। ओके, प्राइवेट नेटवर्क अगर आपने क्रिएट किया है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट इंटरनेट का यूज कर रही है, मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड विथ अ ग्लोबल इंटरनेट। प्राइवेट इंटरनेट का मतलब वो होता है कि वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते ग्लोबल इंटरनेट के साथ। दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया, और अंदर ही जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं। सो जो ग्लोबल इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होते और खुद का प्राइवेट इंटरनेट होता है, उसके लिए भी प्रीफिक्स अलग होते हैं। ओके, ग्लोबली जो होता है मतलब वो ग्लोबल नेटवर्क, मतलब ग्लोबली इंटरनेट में वो पैकेट जाएगा, मतलब वो यूनिक ही होना चाहिए। समझ रहे हो? और Yes, ये ma'am. सारे और ये सारे समरी ऑफ स्पेशल एड्रेस कन्वेंशन, कुछ हमने पढ़े थे, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, उसके प्रीफिक्स कुछ अलग होते हैं। ओके, तो अगर सारे जीरो है मतलब ये होस्ट है। जब आपका कंप्यूटर लाइक लोड करता है ना, तब ये एड्रेस यूज होता है। एट दैट टाइम कंप्यूटर के पास कोई एड्रेस नहीं होता है, तो एनआईसी पे सारे जीरोज होते हैं। ओके, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, तब उसको आईपी एलोकेट होता है। ओके, तो सारे जीरो मतलब अभी होस्ट बूट स्ट्रैप कर रहा है, मतलब वो लोड कर रहा है। एट दैट टाइम एनआईसी पे सारे जीरोज हो गए। ओके, तभी आप कोई एथरनेट से कनेक्ट करोगे या इंटरनेट से वाईफाई से कनेक्ट करोगे, तभी उसको आईपी असाइंस होते हैं। तो ये ऑल जीरोस का कॉन्सेप्ट है। सपोज के ऑल जीरोस हमने दो पार्ट में कन्वर्ट किया है, आईपी को डिवाइड किया है, नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। अगर नेट आईडी में आपके सारे जीरोस हैं और होस्ट आईडी के अंदर कुछ पोर्शन है, तो होस्ट ऑन दिस नेटवर्क। ओके, तो जिसमें वन लिखा है, इधर वन का कुछ मीनिंग है, अलाउड ओनली एट अ सिस्टम स्टार्टअप एंड इट्स नेवर वैलिड अ डेस्टिनेशन एड्रेस। अगर सारे वन है मतलब लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, नेवर वैलिड अ सोर्स एड्रेस। ओके, वो कौन से टाइप में वैलिड होगा वो भी लिखा है, कि इधर आप यू कैन पुट दिस एज अ
वैलिड सोर्स और वैलिड डेस्टिनेशन। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो ये सारे नेवर वैलिड डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब आप किसी को सेंड नहीं कर पाओगे ये। एज अ पैकेट में आपको डेस्टिनेशन एड्रेस ये डालोगे तो यू कैन सेंड इट टू समवन एल्स, कोई दूसरे कंप्यूटर में आप सेंड नहीं कर पाओगे। ओके, ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, तो दिस इज अ नेवर वैलिड सोर्स एड्रेस। ओके, तो ये ब्रॉडकास्ट अगर पैकेट होगा मतलब सब जगह सेंड होना चाहिए, उसका डेस्टिनेशन आईपी विल बी ऑल वंस। ऑल वंस मतलब वो राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को उस राउटर के साथ जितने कनेक्टेड होस्ट है उस सबको सेंड करेगा। देन डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट में भी दो टाइप है, लिमिटेड एंड डायरेक्टेड। लिमिटेड मतलब आपने कुछ होस्ट स्पेसिफाई किए कि 4, अगर ब्रॉडकास्ट पैकेट आता है राउटर के पास तो मेरे पास ये 4 होस्ट है तो उसको ही सेंड होने चाहिए। और डायरेक्ट मतलब सारे होस्ट को सेंड होता है। ओके, उसमें कुछ नेट आईडी होगा और होस्ट आईडी पोर्शन में सारे 1। ओके, और ये नेट आईडी एंड होस्ट आईडी कैसे डिवाइड होता है, बेस्ड ऑन द क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम। अगर ए है तो उसका नेट आईडी पोर्शन एंड होस्ट अलग होता है, बी है तो अलग होता है, सी है तो अलग होता है, डी है तो अलग होता है और ई है तो अलग होता है। वी मोस्टली यूज ए, बी एंड सी। ओके, उस हिसाब से आपका नेट एंड होस्ट पोर्शन डिवाइड होता है। और अगर आपने प्रीफिक्स में 1 to 7 दिखा और पीछे एनीथिंग ऑफन देन 1, तो ये क्या है, शुड नेवर अपीयर ऑन द नेटवर्क। ये आपका लूप बैक एड्रेस है और लोकल होस्ट एड्रेस है, तो ये कभी नेटवर्क के अंदर जाएगा ही नहीं। ये लोकल होस्ट आईपी है, तो ये बना है शुड नेवर अपीयर ऑन द नेटवर्क, तो आप उस पर्पस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, बाकी इस चारों को छोड़ के जो भी एड्रेस हम देखते हैं जैसे कि 192.168.1.3, दे बिलोंग टू आइदर दे बिलोंग टू एनी ऑफ द क्लासेस और इट मस्ट बी अ यूनिक। तो वो पैकेट कहाँ जाएगा, ग्लोबली इंटरनेट पे जाएगा। इफ यू आर नॉट इन अ प्राइवेट नेटवर्क तो ये ग्लोबली इंटरनेट पे जाएगा और उसके डेस्टिनेशन पे जाएगा। राइट, तो देर आर सम स्पेसिफिक एड्रेस और उसके कुछ प्रीफिक्स है जो आपको याद रखना है, जो स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज होते हैं। बाकी जो सारे एड्रेसेस है दैट यू डोंट नीड टू रिमेम्बर, वो सारे एड्रेस यूनिक एड्रेस है और हर एक डिवाइस को अलोकेट होते हैं व्हेन दे आर इन ऑन द इंटरनेट। ग्लोबली जब इंटरनेट पे होते हैं तो उन लोगों को ये अलोकेट होते हैं। ओके, रिजर्व्ड एड्रेस प्रीफिक्स। सो हमने बात की प्राइवेट इंटरनेट की, राइट, ऑन इंटरनेट दैट डज नॉट कनेक्ट टू द ग्लोबल इंटरनेट। So as long as it never connect to the outside world, so individual corporation has a responsibility for assigning a unique network address within the TCP/IP internet. ओके, तो अब आप ग्लोबली किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन खुद का प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करता है तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो यूनिक एड्रेस असाइन करे हर एक होस्ट को। राइट, एंड वो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखें। Indeed, many corporate group that use TCP/IP protocol do assign internet address on their own. वो खुद से अपने इंटरनेट एड्रेस असाइन कर लेते हैं। सपोज कि ये 9.0.0.0 has been assigned to IBM and 12.0.0.0 has been assigned to AT&T. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि ये नेटवर्क एड्रेस कौन यूज कर रहा है, आईबीएम यूज कर रहा है। आईबीएम का खुद का प्राइवेट इंटरनेट है, ओके, जिसको इंट्रानेट बोलते हैं। और AT&T उसका भी खुद का प्राइवेट इंटरनेट है, तो दे आर नॉट कनेक्टेड टू द ग्लोबल इंटरनेट। ओके, तो ये उन लोगों ने ये एड्रेस कलेक्ट किया है और इसमें से जो भी रेंज वो जनरेट करते हैं वो सारे होस्ट जो होते हैं आईबीएम के अंदर, उनको ये रेंज में से अलोकेट होगा आईपी। ओके, सेम अप्लाई फॉर द AT&T। So the set of reserved prefix include both class full and class less value. Okay, जो हमने reserved prefix देखे तो either they can be a part of class full. Okay, class less हमने नहीं देखा, class full addressing scheme हमने देख ली। ABCD जो divide है वो class full addressing scheme है और class less addressing scheme थोड़ी different है, जिसमें ये classes नहीं है। ओके, उसमें अलग तरीके से यू कैन डिवाइड, आपको अलग तरीके से डिवाइड करने पड़ेंगे आईपी एड्रेसेस को। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है आईपी एड्रेसिंग स्कीम को थोड़ा समझने के लिए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू नेटवर्क इन द कंप्यूटर साइंस ऑफ डिपार्टमेंट। कोई एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर इस टाइप का कुछ एक नेटवर्क क्रिएट किया है।
तो यहाँ पे एक आप देख रहे हो एथरनेट है, राउटर है, दो राउटर है, जो स्क्वायर बॉक्स है दिस इज अ राउटर, और आरपानेट मतलब वो आईएसपी। आरपानेट इज योर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, डायरेक्टली तो नहीं जाता है तो आपका डेटा आईएसपी के पास। डेटा योर पैकेट इज गोइंग थ्रू मल्टीपल राउटर और लास्ट में आईएसपी के पास पहुंचता है। तो योर आरपानेट इज योर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एंड यू कैन सी ईच नेटवर्क हैज बीन असाइन अ आईपी एड्रेस। तो यहाँ हर एक नेटवर्क को क्या असाइन किया गया है, आईपी एड्रेस असाइन किया गया है। ओके, एथरनेट के पास आईपी एड्रेस है, टोकन रिंग है तो उसके पास आईपी है। टोकन रिंग की जगह आप यू कैन सपोज कि वाईफाई नेटवर्क है तो वाईफाई नेटवर्क को भी आईपी असाइन होगा। सो दे आर कनेक्टेड, यहाँ पे होस्ट हो गए। ओके, ये पूरा नेटवर्क है, यहाँ पे होस्ट कनेक्टेड हो गए सारे। ओके, उन लोगों को इसमें से आईपी असाइन होगा। फिर ये इंटरफेस है एथरनेट की, वहाँ भी आईपी असाइन करना पड़ता है। यहाँ पे समझ लो कि कोई वाईफाई है, टोकन रिंग तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, तो वाईफाई ले लो, तो वाईफाई है। तो फिर यहाँ से डेटा आएगा राउटर के पास जाएगा। फिर ये इंटरफेस है एक, वहां से डेटा आएगा, वहां से राउटर के पास जाएगा, और लास्ट में वो कहाँ पे जाएगा, आईएसपी के पास। ये सिर्फ आपको ये देखना है कि यहाँ पे हर एक क्या बोलते हैं, हर एक इंटरफेस को आईपी एलोकेट किए गए हैं। एथरनेट को भी आईपी एलोकेट किया है, टोकन रिंग को भी आईपी एलोकेट किया है, और आरपानेट को भी आईपी एलोकेट किया है। एंड यू कैन सी ये अलग अलग क्लासेस के आईपी है। जैसे कि ये क्लास सी का आईपी है, ये क्लास बी का आईपी है आई गेस, और ये क्लास ए का आईपी है। राइट, अलग अलग क्लासेस के आईपी असाइन किए गए हैं। ओके, ये आप चूज कर सकते हो, दैट डिपेंड ऑन यू। ओके, आप अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन खुद कर सकते हो कि आपको कौन से आईपी चाहिए, कौन से क्लासेस के आईपी चाहिए, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद है नेटवर्क बाइट ऑर्डर। जस्ट सेकंड। ओके, नेटवर्क बाइट ऑर्डर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अभी आप डेटा सेंड कर रहे हो या कोई डेटा रिसीव कर रहा है तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, डेटा को स्टोर करने के लिए या लाइक समवेयर फिजिकली कहीं पे स्टोर होगा ना डेटा और पैकेट आपके। ये तो आईपी होगा, ये तो सॉफ्टवेयर लेवल पे, फिजिकल हार्डवेयर लेवल पे भी कुछ होता है। तो वो जो आपका स्कीम होता है, दैट इज स्टैंडर्ड इज डिसाइडेड कि अगर मेमोरी में वो कोई मेमोरी एड्रेस लेता है तो कौन से बाइट कहाँ पे स्टोर होके, ओके, ऑन बोथ ऑफ द साइड, आइदर ऑन सेंडर ऑन रिसीवर। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डिसाइडेड है कि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से सारे कंप्यूटर्स को कम्युनिकेशन करना है। जो अंदर का डेटा होता है दैट इज अप टू कि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उस पे होता है। ओके, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, बट जो हेडर होता है पैकेट का, उसमें जो सारा डेटा होता है वो फिक्स फॉर्मेट में जाना चाहिए। राइट, तो ये उसको बोलते हैं नेटवर्क बाइट ऑर्डर। और दूसरा है होस्ट बाइट ऑर्डर, उसको दूसरी लैंग्वेज में लिटिल इंडियन और बिग इंडियन ऐसा बोलते हैं। राइट, सो सॉफ्टवेयर ऑन वन कंप्यूटर सेंड अ 32 बिट बाइनरी इंटीजर टू अनदर। तो एज 32 बिट बाइनरी इज योर आईपी एड्रेस। तो आपके हेडर के अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे कि आपका सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, पोर्ट नंबर है, गेटवे, ऐसी सारी चीजें होती है, तो ये बाइनरी में लिखा होता है। राइट, तो फिजिकली भी ये डेटा मूव होता है। So physically transport hardware move the sequence of bit from first machine to second machine without changing the order। और ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए बिट का। राइट, अगर आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो जो बिट उसके जो जनरेट होते हैं उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्डर चेंज हो गया मतलब वो पूरा चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑर्डर चेंज हुआ, जीरो की जगह वन हो गया, वन की जगह जीरो हो गए, तो सामने अगर वो डिकोड कर रहे हैं तो अलग आईपी जनरेट होगा। तो आप जो डेटा सेंड कर रहे हो सेम ऑर्डर में फिजिकली और हार्डवेयर के साथ वो डेटा मूव होगा विथ सेम ऑर्डर और सीक्वेंस। सो हाउएवर नॉट ऑल आर्किटेक्चर स्टोर द 32 बिट इंटीजर इन अ सेम वे। तो ये समवेयर इट विल बी अ स्टोर, ये आपका पैकेट का कुछ डेटा होता है ना, ये स्टोर होता है आपके सिस्टम के अंदर। ओके, एंड वो जो स्टोर होता है ना वो एक वे में स्टोर होता है। तो सपोज कि मान लो
कि आपकी मेमोरी एड्रेस है 0 to 10, ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो ये दो स्कीम है, दो स्कीम के हिसाब से ही आपका डेटा स्टोर होगा फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द पैकेट, ओके, डेटा नहीं, बट ऊपर के हेडर की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर वो लिटिल इंडियन में स्टोर होता है, मतलब द लोएस्ट मेमोरी एड्रेस कंटेन द लोअर बाइट ऑफ इंटीजर, ओके। तो सपोज कि आपने डेटा कन्वर्ट किया, अभी मैं उसको नाम दे रही हूँ B1 B2 B3 B4। तो आपका लोएस्ट मेमोरी एड्रेस क्या है अभी 0 to 10 में? 0 इज माई लोएस्ट मेमोरी एड्रेस। 0 पे क्या स्टोर होगा? B0। सपोज कि मैंने 0 to 10 तक नंबरिंग की है एड्रेस की, और B0 से B10 तक, तो आपके 0 पे स्टोर होगा, 0 मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा B0 बाइट, ओके। इस स्कीम को बोलते हैं लिटिल इंडियन। और बिग इंडियन किसको बोलते हैं? जो आपका मेमोरी एड्रेस 0 है उस पे स्टोर होगा B10। समझ रहे हो? यस मैम। हेलो, ओके। तो 0 पे स्टोर होगा B10, तो उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर बाइट। लोअर ऑर्डर मतलब सीक्वेंस के हिसाब से ही स्टोर होगा, 0 पे B0, 1 पे B1, 2 पे B2, 3 पे B3, ऐसे। और आपके बिग इंडियन स्कीम में कैसे रिवर्स में स्टोर होगा? 0 पे B10, 2 पे B9, ओके, 3 पे B8, ऐसे स्टोर होगा पूरा डेटा, राइट। तो ये स्कीम के हिसाब से ही डेटा स्टोर होता है किसी भी कंप्यूटर में, व्हेन दे आर सेंडिंग और रिसीविंग द पैकेट, ओके। पैकेट रिसीव होता है मतलब उसको डिकोड करना पड़ता है, और डिकोड करके वो कहीं पे स्टोर तो होता है, उसको मेमोरी तो रिक्वायर्ड है ही। तो इस हिसाब से उसको मेमोरी एलोकेशन होता है, और उस हिसाब से वो डिकोड भी करता है। और जहाँ पे डेटा और पैकेट रिसीव होता है उसको पता चल जाएगा कि ये लिटिल इंडियन में कन्वर्ट किया है या बिग इंडियन में कन्वर्ट किया है। अगर बिग इंडियन में कन्वर्ट किया है तो सामने की साइड भी डिकोड उसको बिग इंडियन में करना पड़ेगा, अगर लिटिल इंडियन में किया है तो मोस्टली उसको डिकोड उसी वे में करना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ फिक्स स्कीम है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। सिर्फ ये याद रखना है कि लिटिल इंडियन में आपके लोएस्ट मेमोरी एड्रेस पे लोअर बाइट होगा, मीन सीक्वेंस वाइज जाएगा, और आपके बिग इंडियन में लोएस्ट मेमोरी एड्रेस पे हायर बाइट स्टोर होगा, मतलब रिवर्स में स्टोर होगा, बाइट एड्रेस रिवर्स में स्टोर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि स्टैंडर्डाइज करना ये बाइट ऑर्डर को? बिकॉज ऑफ इंटीजर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट पैकेट कैरी अ बाइनरी नंबर, ओके, एंड स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन लाइक योर डेस्टिनेशन नंबर और पैकेट लेंथ। तो ये क्वांटिटी है, ये दोनों साइड समझ में आनी चाहिए, राइट, सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड। Okay, so TCP/IP protocol solve the byte order problem by defining this network standard byte order that all machine must use for the binary field in their internet packet. ओके, तो ये जो आप डेटा सेंड कर रहे हो दोनों साइड समझ में तो आना चाहिए ना, कि कोई एक जनरलाइज स्टैंडर्ड होगा तो सबको समझ में आएगा, सबने वो रखा है तो मतलब, अगर कोई स्कीम नहीं होगी स्टैंडर्डाइज और जनरल स्कीम, तो सब लोग अपने हिसाब से सेंड करेंगे, अपने हिसाब से रिसीव करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये किस में कन्वर्ट करके दिया है, राइट। अगर जनरलाइज स्कीम होगी तो सब वही यूज करेंगे, राइट। तो दैट्स वाई TCP/IP को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था, तो दे इंट्रोड्यूस दिस नेटवर्क स्टैंडर्ड बाइट ऑर्डर, जो सारे मशीन को यूज करना है जो IP पैकेट सेंड और रिसीव कर रहे हैं। और उसमें बाइनरी फील्ड है, बाइनरी फील्ड ऑब्वियसली होने ही वाली है, क्योंकि वी नीड टू कन्वर्ट आर योर डॉटेड डेसिमल इंटरनेट एड्रेस इनटू द बाइनरी एड्रेस, राइट। तो कोई भी जब कन्वर्ट करता है बाइनरी आइटम को, ओके, और फिर वो बाइनरी आइटम को भी आपको लोकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। सपोज कि मशीन के पास अगर पैकेट आता है तो फिर वो भी कन्वर्ट करेगा, डिकोड करेगा उस बाइनरी आइटम को, लोकल जो जिसको जिस भाषा में मशीन को समझ में आता है उस भाषा में वो कन्वर्ट करेगा, और लोकल रिप्रेजेंटेशन में भी वो कन्वर्ट कर देगा। सो अगर नेटवर्क स्टैंडर्ड बाइट ऑर्डर बिफोर सेंडिंग अ पैकेट कन्वर्ट द बाइट ऑर्डर टू द होस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर व्हेन पैकेट अराइव्स, ओके, पैकेट अराइवल के टाइम उसको होस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। नेटवर्क बाइट ऑर्डर में होता है पैकेट, और जब वो पहुंचता है तो उसको होस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको होस्ट समझ सके। और हम ये सब कहाँ पे कर रहे हैं? हेडर पे कर रहे हैं, ओके। जो डेटा नीचे का अंदर का जो पोर्शन का डेटा होता है इनसाइड द पैकेट, उस पे हम कुछ नहीं करते, उस पे TCP/IP का कुछ राइट नहीं है, ओके। TCP/IP प्रोटोकॉल डज नॉट नो कि व्हाट डेटा इज बीइंग सेंट, क्या डेटा सेंड कर रहा है पैकेट के अंदर, क्या डेटा कैरी हो रहा है,
तो जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है दे आर फ्री टू यूज एनी फॉर्मेट फॉर द डेटा रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, बट ऊपर के हेडर का फॉर्मेट फिक्स है टीसीपी आईपी के थ्रू। गॉट इट? Yes, ma'am. समझ? ओके। ओके, तो ये था आपका इंटरनेट आईपी एड्रेस स्कीम, बट अभी क्या फिजिकली भी आपको मैप करना पड़ेगा उसको। ओके, ये आईपी से बात नहीं चलेगी, यू नीड टू मैप फिजिकल एड्रेस ऑल्सो। ओके, क्योंकि आपके ओएसआई लेयर कहाँ से स्टार्ट होती है? फिजिकल लेयर से। फिजिकल डेटा लिंक, ओके, फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो उस हिसाब से पूरा डेटा आता है। तो लास्ट में फिजिकल लेयर पे भी मैपिंग होनी चाहिए आपके आईपी की। फिजिकल एड्रेस बोले तो आपका मैक एड्रेस, राइट? सो वी हैव दिस एड्रेस रिजोल्यूशन प्रॉब्लम। तो उसको रिजोल्व कैसे करें? आईपी के साथ वो आता है, तो आईपी को आपने मैक के साथ मैप कौन करेगा और कैसे करेगा? ओके, डू यू हैव एनी वे कि आप कैसे करोगे वो, और कोई प्रोटोकॉल है जो आप यूज करोगे? ओके, तो uh, ये मैपिंग इज रिक्वायर्ड IP to correct physical address when you want to send the packet across the physical network. So we have a address resolution problem. So you can consider two machine A and B that connect to the same physical network. हम एक physical network के अंदर है, तो हमारा IP है IP एड्रेस है IA and IB, और आपका आपका physical address है P and PB. So our goal is what? To devise a low-level software that hide the physical address, allow high-level program to work only with internet address. Okay, अभी जो आपका IP है वो हायर लेवल पे है, और आपका जो अंडरलाइंग फिजिकल एड्रेस है उसके साथ आप उसको मैप कर रहे हैं। Suppose कि A want to send the packet to the B across the physical network to which they both attach, but A has only B's IP address. Okay, A के पास B का IP एड्रेस ही है, B का फिजिकल एड्रेस नहीं है, बट आई वांट टू सेंड द पैकेट। अगर आपको पैकेट सेंड करना है तो ओएसआई लेयर के जो सातों लेयर है उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, मीन्स आपको फिजिकल मैपिंग भी करना पड़ेगा आईपी का फिजिकल एड्रेस के साथ। So now question is what? How does A map that address to B's physical address PB? अभी हमने ऊपर ही देखा कि A का IP क्या है IA एंड फिजिकल PA, और B का IP IB एंड फिजिकल एड्रेस PB। अभी A मैप कैसे करेगा B का फिजिकल एड्रेस PB से? बिकॉज A के पास क्या है अभी? उसका IP एड्रेस ही है, मतलब IB ही है। अगर आपको फिजिकल नेटवर्क के अंदर भी डेटा सेंड करना है, मतलब वो फिजिकली ऑब्वियसली वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर और नेटवर्क, तो आपको मैपिंग करना पड़ेगा आईपी से उसका फिजिकल एड्रेस का, राइट? और योर फिजिकल एड्रेस इज ऑल्सो यूनिक। आपका फिजिकल एड्रेस भी यूनिक एड्रेस ही होता है, आपका मैक आईडी जिसको बोलते हैं वो, राइट? फॉर एग्जाम्पल सपोज कि ए सेंड नीड टू सेंड अ डेटाग्राम टू मशीन बी अक्रॉस द फिजिकल नेटवर्क जिसके साथ ये दोनों अटैच है, राइट? सो दो वे में ये पॉसिबल है। एड्रेस मैपिंग अराइज इन टू स्टेप। First, at last step of delivering a packet, the packet must be sent across a one physical network to its final destination. Okay, तो जब आता है अराइवल के टाइम, at that time you can do mapping. So computer sending the packet must map the final destination internet address to destination physical address. अभी मैं जब सेंड कर रही हूँ तभी मैपिंग करके रखूँ कि ये इसका आईपी है और उसका ये फिजिकल एड्रेस है, तो ये मैं मैपिंग ऑलरेडी कर दूं। और सेकंड, एट एनी पॉइंट अलोंग द पाथ फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन अदर देन द फाइनल स्टेप पैकेट मस्ट सेंड टू द इंटरमीडिएट राउटर। ऐसा तो है नहीं पैकेट सेंड हुआ और डायरेक्टली यही होस्ट पे पहुंच गया। ओके, इंटरमीडिएट बहुत सारे राउटर्स होते हैं जिसके थ्रू ये पैकेट पास होता है, तो आपको इंटरमीडिएट राउटर का भी फिजिकल एड्रेस मैप करना पड़ेगा। ओके, तो सेंडर मस्ट मैप द इंटरमीडिएट राउटर्स आईपी एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। ओके, और फिजिकल एड्रेस उसी का मैप होना चाहिए जिसका आईपी एड्रेस आपने पैकेट में लिखा है उधर कि डेस्टिनेशन आईपी 192.162.13.1। ओके, उसी का फिजिकल एड्रेस उधर आना चाहिए। किसी और का फिजिकल एड्रेस आ गया तो भी आपका पैकेट कहीं और जगह पे डिलीवर हो जाएगा, राइट? सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ हाई लेवल एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस इज नोन एज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रॉब्लम कि हमको क्या करना है? मैप करना है अपने हाई लेवल एड्रेस, मतलब आपका आईपी एड्रेस को
फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस को, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रॉब्लम एंड हैज बीन सॉल्व्ड इन अ several ways. So some protocols suits keep table in each machine that contain pair of high level address and physical address. So there are some protocol जैसे TCP IP है, ऐसे दूसरे भी प्रोटोकॉल हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं, टेबल मेंटेन करते हैं, और उस टेबल के अंदर क्या होता है, हर एक मशीन का आईपी और सामने उसका फिजिकल एड्रेस, आईपी एंड फिजिकल एड्रेस, आईपी एंड फिजिकल एड्रेस, ऐसे पूरा एक टेबल क्रिएट होता है जो हर एक मशीन के अंदर होता है। ओके, हर एक डिवाइस के अंदर होता है। तो ये काम कौन करता है, ये टेबल बनाने का, उसमें मैप करने का एक प्रोटोकॉल करता है। वी हैव अ प्रोटोकॉल टू डू दिस वर्क। ओके, तो ये जो मैपिंग होता है वो दो तरीके से होता है, आइदर डायरेक्ट मैपिंग होता है और आइदर थ्रू डायनेमिक बाइंडिंग। ओके, एक आपका डायरेक्ट मैपिंग होगा, जैसे कि बताया है, आईपी टू मैक एड्रेस, और दूसरा एक डायनेमिक बाइंडिंग के थ्रू ये मैपिंग होता है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फिजिकली जो डेटा को मैप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका मैक एड्रेस है उसको भी वहाँ पे आईपी एड्रेस के पास रखना इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई यू नीड टू डू द मैपिंग। तो ये डायरेक्ट मैपिंग कैसे होता है, सो कंसीडर अ नेटवर्क हार्डवेयर दैट यूज अ स्मॉल कॉन्फ़िगरेबल इंटीजर एज अ हार्डवेयर एड्रेस। आपने मैक एड्रेस देखा होगा ना, राइट? उसमें क्या क्या, चार चार इंटीजर देन कॉलन, चार इंटीजर और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड कैरेक्टर्स। ओके, ऐसा आपका मैक एड्रेस बना होता है पूरा। यू कैन चेक थ्रू आई एफ कन्फिग और आईपी कन्फिग के थ्रू आपका मैक एड्रेस चेक कर सकते हो। ओके, इस तरह से पूरा आपका मैक एड्रेस होता है। So the computing a physical address from the IP is a trivial task. So computational consists of existing the host portion of the IP address. Mostly जो कोई नेटवर्क एडमिन की आप थिंकिंग कैपेबिलिटी से सोचो तो वो क्या करेगा, लाइक सपोज के 1 2 3 ऐसे आपके होस्ट पोर्शन के अंदर आईडी है। सपोज कि आपका आईपी है 192.168.1.3, 1.1, 1.2, 1.5। ओके, तो फिर वो फिजिकल एड्रेस भी ऐसे ही लेगा, 3 के साथ 3, 1 के साथ 1। ओके, तो इससे एक्सट्रैक्शन इजी हो जाता है। अगर आईपी से मैक को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा तो इट विल बी इजी, क्योंकि 3 के साथ 3 का मैपिंग किया है, 2 के साथ 2 का मैपिंग किया है, 1 के साथ 1 का मैपिंग किया है, but it's not efficient. Okay, extraction is not computationally efficient on most architecture because it requires a machine instruction. Okay, अभी ये आईपी से आपको मैक एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको कुछ करना तो पड़ेगा कंप्यूटेशनली, आपको यू डू नीड सम काइंड ऑफ कोडिंग। ओके, तो ये आपको मशीन इंस्ट्रक्शन कुछ सेंड करनी पड़ेगी तो ही ये कन्वर्ट होके मैक में आएगा। तो मैपिंग इज इजी टू मेंटेन। अभी आप उसको मैपिंग के साथ कंपेयर करो। ओके, एक्सट्रैक्शन एंड मैपिंग इज टू डिफरेंट थिंग। एक्सट्रैक्शन मतलब आईपी से मैक को एक्सट्रैक्ट करना, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग। ये इजी हो जाता है जैसे आप ये डायरेक्ट मैपिंग करो कि आपका आईपी है 3 और आपका फिजिकल एड्रेस है 3, उस तरह से। बट मैपिंग उससे ज्यादा इजी हो जाता है। क्यों? मैपिंग इज इजी टू मेंटेन, मेंटेन करना बहुत इजी होता है, बिकॉज इट कैन बी परफॉर्म विदाउट रेफरेंस टू द एक्सटर्नल डेटा। यहाँ पे आपको कोई एक्सटर्नली रेफरेंस नहीं देना पड़ता, या मशीन इंस्ट्रक्शन में कुछ एक्सटर्नली रेफरेंस जाता होगा। ये डायरेक्ट मैपिंग है। ओके, ये आपका आईपी है 192.168.1.3 और ये आपका मैक एड्रेस है 004A5C5431। ओके, ये पूरा जो मैक एड्रेस का जो होता है वो उसके सामने लिखा है, उस तरह से डायरेक्ट मैपिंग होता है। और फाइनली जब कोई आपको नया कंप्यूटर ऐड करना होता है, तो विदाउट एक्सिस्टिंग असाइनमेंट और रिकम्पाइलिंग द कोड आप अच्छे से कर पाओगे। राइट, अभी आपको क्या करनी है, न्यू एक रो ऐड करनी है आपके टेबल के अंदर, दैट्स इट। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, नया कंप्यूटर ऐड हो जाएगा उस मैपिंग टेबल के अंदर। समझ रहे हो? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ ये बहुत सारे डिफरेंट स्कीम है कि आप कैसे कर सकते हो। ये फंक्शन के थ्रू दिया गया है कि चूजिंग अ नंबरिंग स्कीम दैट मेक एड्रेस रेजोल्यूशन एफिशिएंट मींस सिलेक्टिंग अ फंक्शन एफ दैट मैप आईपी टू फिजिकल। तो कोई फंक्शन आप चूज कर रहे हो जो मैप कर रहा है आपके आईपी को फिजिकल एड्रेस के साथ। तो मैथमेटिकली आप देखो तो इस तरह से आप लिख सकते हो उस फंक्शन को। ओके, पी ए इज अ फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ ए। ओके, कोई फंक्शन है जो मैपिंग कर रहा है पी ए का एफ आई ए के साथ।
मतलब आईपी एड्रेस का फिजिकल एड्रेस के साथ. सो इट इज अ पॉसिबल टू चूज मैपिंग अदर देन example above, and we can also computation of f to be efficient. So, and we want the choice to be easy for the human to understand. So the scheme is preferred which relationship between IP and hardware address is a obvious. ओके ये फंक्शन के थ्रू आप देख सकते हो कि दोनों के बीच का रिलेशन एक ऑब्वियस चीज है. पी ए इज इक्वल टू एफ ऑफ आई, एफ विल बी एनीथिंग. ओके जो इजी आपको लगे वो एफ चूज करो, बट मैपिंग होना इज रिक्वायर्ड. तो ये डायरेक्ट मैपिंग है आपका फिजिकल एड्रेस के आईपी एड्रेस के साथ. इसको बोलते हैं डायरेक्ट मैपिंग. दूसरा है डायनेमिक बाइंडिंग के थ्रू. ओके डायनेमिक बाइंडिंग में बहुत सारी एथरनेट जो होती है वो ये डायरेक्ट मैपिंग यूज नहीं करते हैं. ओके like ethernet nic is assigned a 48-bit physical address when device is manufactured. So as a consequence, when hardware failed and require that internet interface be replaced, the machine's physical address change. अगर change हो जाएगा तो क्या करेंगे मैपिंग के अंदर? So because the Ethernet address is a 48-bit long, there is a no hope it can be encoded into the 32-bit IP address. तो ये एक प्रॉब्लम है एथरनेट के अंदर. वो एटा मैन्युफैक्चर टाइम पे ही वो हो जाता है फिट. तो ये स्कीम तब यूज नहीं होती है. तो यू रिक्वायर अनदर सॉल्यूशन. तो दूसरा है डायनेमिक बाइंडिंग. So designer of TCP/IP protocol find a creative solution to this address resolution problem for a network like Ethernet that have a broadcast capability. उसके पास broadcast capability होती है Ethernet के पास, right? So this solution allow new host or router also to be added into the network without recompiling the code. जो हमने बोला था ना कि अगर नया कोई कंप्यूटर ऐड होगा तो आपको कंपाइलेशन फिर से करना पड़ेगा, और ये सब सारी चीजें हमें नहीं करनी थी, इसलिए हम डायरेक्ट मैपिंग कर रहे थे. बट इसमें आप इजीली ये सारी चीजें कर सकते हो. एंड डज नॉट रिक्वायर टू मेंटेन द सेंट्रलाइज डेटाबेस. और आपको डेटाबेस भी रखने की जरूरत नहीं है. जैसे डायरेक्ट मैपिंग पे हमारे पास क्या है, सेंट्रलाइज डेटाबेस मतलब टेबल है जिसपे हमने ये मैप करके रखा है. ओके तो ये सारी चीज इसमें नहीं रिक्वायर है. टू अवॉइड दिस डिजाइनर चूज अ लो लेवल प्रोटोकॉल टू बाइंड द एड्रेस डायनेमिकली. ओके तो हमारे पास एक प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस हुआ है जो ये सारी चीजें डायनेमिकली करता है. इस प्रोटोकॉल का नाम है ERP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. Okay, this provide a mechanism that is both reasonably efficient and easy to maintain. ERP ये दोनों चीजें कर देता है जो डायरेक्ट मैपिंग में एज अ डिसएडवांटेज भी थी और एडवांटेज भी थी. ओके so this provide mechanism that is both reasonably efficient and easy to maintain. Okay, here you can see कि क्या करता है ERP. ERP allow host to find a physical address of a target host on the same physical network given only the target's IP address. तो यहाँ एक्चुअल में होता क्या है, ERP जो होता है एक प्रोटोकॉल है. सपोज कि यहाँ पे मुझे बी का फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है फ्रॉम आई बी. तो इट्स आईपी एड्रेस ए. तो होस्ट ए क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा. ओके किसका एड्रेस पीबी है ऐसा पैकेट सेंड करेगा सबको. ओके और जिसका एड्रेस पीबी होगा वो क्या करेगा, रिप्लाई करेगा यस आई बी विथ पीबी. ओके तो ए ब्रॉडकास्ट करता है सबको. ए विल सेंड अ ब्रॉडकास्ट पैकेट टू एवरीवन. एक्स को भी सेंड करेगा, बी को भी सेंड करेगा एंड वाई को भी सेंड करेगा. क्या सेंड करेगा, किसका एड्रेस पीबी है और जिसका एड्रेस पीबी होगा वो क्या करेगा, रिप्लाई करेगा. रिप्लाई विथ अ पेयर आई बी एंड पीबी. ये मेरा इंटरनेट एड्रेस है और ये मेरा फिजिकल एड्रेस है, तो आपको मैपिंग मिल जाएगी. तो इस तरह से आईपी प्रोटोकॉल वर्क करता है. ब्रॉडकास्टिंग करता है, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू रिप्लाई करता है. ओके तो ये ब्रॉडकास्टिंग एक्चुअली में यूजफुल है, बट ब्रॉडकास्टिंग के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है. क्या डिसएडवांटेज होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के? कि मैम एक ही साथ आना चाहे मैसेज. હા બધાને મેસેજ જાય એટલે એક્સપેન્સિવ પણ છે બ્રોડકાસ્ટિંગ કરવું. ઓકે એવરી ટાઈમ યુ સેન્ડ પેકેટ ટુ એવરી કમ્પ્યુટર. ઓકે some are busy in some work. ઓકે તો થોડુંક એક્સપેન્સિવ પણ છે બ્રોડકાસ્ટિંગ કરવું. ઇઝ ફાર ટુ એક્સપેન્સિવ એવરી ટાઈમ બીકોઝ એકવાર કરવું બરાબર છે પણ હર વખતે બ્રોડકાસ્ટિંગ કરીને કેવું કે આ કોનું એડ્રેસ છે કોનું એડ્રેસ છે. ઓકે તો હાઉ કેન આઈ રીચ યુ, હાઉ કેન આઈ રીચ યુ, દેટ યુ કાન્ટ ડુ ઇટ. ઇટ્સ ફાર ટુ એક્સપેન્સિવ એન્ડ હરેક મશીનને હર વખતે પાછું આ ખાલી ખોટું પેકેટ રિસીવ થશે. તો એના માટે એક બીજો
ERP પાસે છે જેને બોલાય છે કેશ. ઓકે, જેવી રીતે DNS કેશિંગ હોય છે એવી રીતે ERP નું પણ કેશિંગ હોય છે. આજે કરીએ કે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરવું છે? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મેમ. ક્યારે? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. અવાજ નથી આવતો દુરવી તારો. હેલો. 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 યસ હા બોલો. મેમ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું એમ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, હા. બાકી પેલા બંનેને ઘણું બધું મિસ થઈ જશે. યસ મેમ. Okay, we'll stop here.